Assalamu alaikum class. Hope you people are doing good. Today we are going to talk about long report writing. So let's start with what is a long report. Writing an effective business report is a necessary skill for communicating ideas in business environment. कि जो बिजनेस रिपोर्ट है उसको लिखना आपको एक जरूरी थिंग है जिसको आपको आना चाहिए when you are to write in a business environment. Reports usually address a specific issue or problem. Reports होती हैं वो स्पेसिफिकली किसी इशू या किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं, किसी इशू या किसी प्रॉब्लम पे रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं. बिजनेस रिपोर्ट्स और a type of assignment in which you analyze the situation. एक तरह की assignment होती है जिसमें आप एक situation को, किसी problem को analyze करते हैं. Basically, there are three steps in a formal report. Number one is front matters, number two is body, and number three is back matters. So let's move towards the front matters. First, there in front matters. Front matter is an extremely important element to write any report. Whether it's for a specific company research or for personal reports, these elements of front matters, the element of front matters के होते हैं जो रिपोर्ट के पहले हिस्से होते हैं, उनको हम फ्रंट मैटर्स कहते हैं. तो रिपोर्ट के पहले हिस्सों में क्या चीज आती है? कवर पेज आता है, टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड फॉरवर्ड. ये वो हिस्से हैं जो कि रिपोर्ट के शुरू में आते हैं. So let's discuss what is a cover. A cover report is a piece of printed stock that goes over one's business report. ये जो कवर होता है ये बिजनेस रिपोर्ट का सबसे आउटर पार्ट होता है और इसलिए क्या होता है आपकी रिपोर्ट का नाम वगैरह लिखा होता है. Next is title fly and title page. Some reports open with a page that indicates only the title. Report title. This page, often treated as optional, is commonly known as title fly. Title fly क्या होता है? एक रिपोर्ट का जो है वो एक पार्ट होता है जो कवर टाइटल के बाद आता है. इसमें जो है वो रिपोर्ट का टाइटल लिखा जाता है और ये अक्सर जो है वो इसको ऑप्शनल के तौर पे ट्रीट किया जाता है. A title page is a front page of a report. उसके बाद टाइटल पेज आता है. टाइटल पेज में रिपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है, it contains title and subtitle of the specific report. In a title page there are two things. One is prepared for and the another is prepared by. इसमें हम लिखते हैं, ये जो आपका टाइटल पेज होता है इसमें सबसे ऊपर रिपोर्ट का टाइटल आता है और उसके बाद आता है कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है या किसने बनाई है और ये किसके लिए बनाई है. Prepared by and prepared for. Next is letter of transmittal. ठीक है, letter of transmittal provides the recipient with a specific context in which to place the larger document and simultaneously gives the reader a permanent record of having sent the material. Transmittal letters are usually brief. The first paragraph describes what is being sent and the purpose for sending it. Letter of transmittal में आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो कि ये रिपोर्ट मैंने क्यों सेंड की है, ठीक है, किसको सेंड की है और इसका भेजने का मकसद क्या था. ठीक है, ये लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में आप लिखते हो. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेटर ऑफ ट्रांसमिटल. देन कम्स टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट किस चीज के बारे में होता है? ये हमें बताता है कि टेबल के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइटल हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं वो किस पेज पे है. ठीक है, इसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बाद सब हेडिंग्स भी आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा जो बेहतर होता है एक रिपोर्ट में उसमें आप जो है वो जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो लिखते हो और उसके सामने उसका पेज नंबर लिखते हो. नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन. लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन में क्या आता है? आप फिगर्स और टेबल्स का बताते हो कि कौन से पेज पे कौन सी फिगर है और कौन सा टेबल आपने जो है वो इंसर्ट किया हुआ है. ठीक. Next is forward. Forward क्या होता है या preface. Preface is a brief introduction written by the author as opposed to forward, which is an introduction written by another person that usually comes before the preface. Preface ये होता है कि इसमें जो राइटर होता है, the person who is writing this report, वो उस टॉपिक के बारे में बताता है, उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है जिसके बारे में रिपोर्ट लिखी गई है, ये वो खुद बताता है. जबकि फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड में कोई और बंदा जो है वो उस चीज के बारे में लिख रहा होता है, उस चीज के बारे में बता रहा होता है. नेक्स्ट इज द बॉडी.
बॉडी इज द सेकंड सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, और बॉडी के अंदर आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट डिस्कशन, एंडिंग समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। आपका ये जो बॉडी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, and the body section expands and develops the material in a logical and coherent manner, reflecting the structure outlined in the introduction. It contains a description of finding and a discussion of them. It should also relate the findings to any theory relevance, और इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो, ठीक है, उस पे डाटा जो आपने फाइंड किया होता है उस पर डिस्कस करते हो, ठीक है। और इसमें ये सारे सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज एग्जीक्यूटिव समरी। Executive summary or management summary is a short document or section of a document produced for business purpose that summarizes a longer report or proposal or a group of related report in such a way that reader can rapidly become acquainted with the larger body of the material without having to read it all. Executive summary क्या होती है, ये रिपोर्ट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, और ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिखी जाती है कि जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकें, वो सिर्फ इस एग्जीक्यूटिव समरी को जो है वो पढ़ के। अच्छा, ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है, इट includes the short description of all the important sections discussed in the long report. Like ये इस तरह से होता है ना कि एग्जेक्टिव्स के लिए ये शॉर्ट समरी लिखी जाती है कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो रिपोर्ट के हर सेक्शन को जो है वो डिटेल उसको स्टडी करें, उसको डिटेल एनालिसिस करें, तो उनके लिए जो है ये एग्जीक्यूटिव समरी लिखी जाती है जिसमें हर सेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल जो है वो कुछ ना कुछ हर सेक्शन के बारे में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज सर्टेनली मोस्ट रेड सेक्शन, मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। इसमें जो पहली चीज जिसके बारे में लिखा जाता है दैट इज ऑथराइजेशन, कि आपको किसने अलाउ किया इस रिपोर्ट को लिखने पे। मीन्स आप इसमें ये बताते हो कि आपको किसने कहा है ये रिपोर्ट लिखने के बारे में। सेकंड वन इज पर्पस, इस रिपोर्ट को लिखने का मकसद क्या है, व्हाई यू आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, व्हाट इज द गोल और एम ऑफ दिस रिपोर्ट। थर्ड वन इज स्कोप। स्कोप इज closely related to purpose, it indicates the boundaries of the problem. स्कोप में ये है कि जिसमें आप बताते हो कि ये जो रिपोर्ट है ये किस किस चीज से डील करेगी, मींस उसकी बाउंड्रीज के बारे में आप बताते हो कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, इसी लिमिट में रह के हम काम करेंगे। फोर्थ वन इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या, इट मींस एनीथिंग दैट क्रिएट ऑब्स्टेकल व्हाइल मेकिंग द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट को बनाते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या किन रीजंस की बिना पे आप पूरी तरह जो है वो उस चीज पे रिसर्च नहीं कर पाए हो, पूरी तरह से आप डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए हो, ठीक है। जो मुश्किलात आपको डाटा कलेक्शन में फेस आई हैं या और किसी प्रोसेस में फेस आई हैं उसको आप लिमिटेशंस में रखते हो। नेक्स्ट वन इज रिसर्च मेथड, कि आपने किस रिसर्च मेथड को फॉलो करके जो है वो डाटा को एनालाइज किया है। नेक्स्ट इज लिटरेचर व्यू। ये लिटरेचर व्यू में क्या आता है कि जो टॉपिक जिस पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो इस पे पहले से और कितने लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, उनके वर्क्स का आप रेफरेंस देते हो, उनके वर्क्स को आप कोट करते हो इन योर रिपोर्ट। देन रिपोर्ट प्रीव्यू। रिपोर्ट प्रीव्यू में क्या आता है, ये आखिरी सेक्शन है बॉडी का, और इसमें आगे आने वाले सेक्शंस के बारे में बताया जाता है कि इसके बाद हम इन सेक्शंस पे काम करेंगे। Next one is text discussion. Text discussion is the most important section. इसको आप overall body भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, it follows the introduction and consists of major sections or chapters that present, analyze and interpret the findings gathered as part of writer's investigation. इसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो और उसको फिर इंटरप्रेट करते हो। Normally it comprises the bulk of the report content. As of fact, this पार्ट इज द रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा यही होता है और इसी को रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, with the exception of the conclusion or recommendation section that follows the other part of the report are attached parts। और इसके अलावा जो है वो conclusion और recommendation इससे अलग होते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो इस पार्ट से कनेक्टेड होती हैं। Then comes the ending summary।
एंडिंग समरी क्या होता है कि ये आप कंक्लूजन से पहले जितना कुछ आपने जो बॉडी में आपने जो काम किया होता है, जो आपने एनालिसिस किया होता है, जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं आपकी, वो इसमें एंडिंग समरी में 2-3 लाइनों में आप उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हो। ये क्यों एक्सप्रेस करते हो आप? अनलाइक एग्जीक्यूटिव समरी, एंडिंग समरी रिव्यूज ओनली हाइलाइट्स ऑफ द फैक्ट, इट मे बी स्टेटेड एज की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। इसमें आप सिर्फ की फाइंडिंग्स के उस रिपोर्ट, सारा जो आपने बॉडी में से हमारी जो की फाइंडिंग्स है वो आप इसमें लिखते हो, preface from the body and stated as or listed in the order in which they appear in the body. The report that do little more than present information and ending summary of the major findings may be included. ठीक है, इसमें जो आपकी जो findings आई होती हैं, जो interpretations आपने की होती हैं from the body, वो आप ending summary में add करते हो. Next is the conclusion. On the basis of findings और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरप्रिटेशन आप क्या करते हो, आप अपना कंक्लूजन फॉर्म करते हो. ठीक है, आप सम अप करते हो जो आपने सारा काम किया होता है और जो आपने रिजल्ट निकाला होता है वो आप कंक्लूजन्स में सम अप कर देते हो. रिकमेंडेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन. आपने कंक्लूजन में जो चीज कंक्लूड की होती है उसकी बेस पे आप रिकमेंडेशंस देते हो रिपोर्ट. ठीक है, एंड रिकमेंडेशन शुड बी रिटन कंसाइजली, ब्रीफ देते हो आप, पॉइंट्स की फॉर्म में देते हो. Any reason for recommendation should only be given if necessary. Sometimes ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है that you have recommended this point, तो उसके पीछे रीजन क्या है. सही है, तो अगर वो रीजन बताना जरूरी है कि आपने ये पॉइंट क्यों रेकमेंड किया है यहाँ पे, तो आप बता सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. It should not be ambiguous and the suggestion should be implemented. और ये जो आपकी recommendations होनी चाहिए ये क्लियर होनी चाहिए, ambiguous नहीं होनी चाहिए, ताकि उस पे काम किया जा सके. अब एक रिकमेंडेशन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट रिसर्च, और आपकी जो अनक्लियर रिकमेंडेशंस होती हैं वो आपकी रिसर्च के बारे में बता देती हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसमें आपने सफिशिएंट रिसर्च नहीं की हुई, उस पे आपका जो डाटा है वो भी वेग है. नेक्स्ट इज बैक मैटर. तीसरा जो हमारा मेन सेक्शन है दैट इज बैक सेक्शन. इसमें हमारे पास अपेंडिक्सेस आ जाते हैं, इंडेक्स आता है, ग्लोसरी आती है और बिब्लियोग्राफी आती है. अपेंडिक्स में क्या आता है? अपेंडिक्स में रिपोर्ट के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप रिपोर्ट के अंदर नहीं डाल सकते, मींस के बिकॉज ऑफ देयर लेंथ. आप जैसे स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपने लोगों से इंटरव्यूज लिए हैं, उनके इंटरव्यूज, उनकी स्टेटमेंट्स, वो आप फिर किस तरह यहाँ पे मेंशन करते हो कि आप रिपोर्ट की बॉडी में लिख देते हो कि स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अली इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स ए. ठीक है, या अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई किसी और रिपोर्ट के टेबल या वहां से भी डाटा लिया होता है, तो उसको भी आप एज अपेंडिक्स अपनी उसके साथ अटैच कर देते हो और आप रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हो दैट द टेबल्स रिलेटेड टू दिस फैक्ट या रिलेटेड टू दिस स्टैटिस्टिक आर अटैच्ड एज अपेंडिक्स. आप आगे ए बी सी डी उसके साथ लिख देते हो. नेक्स्ट इज इंडेक्स. इंडेक्स इज यूज्ड टू फाइंड टर्म्स इन द टेक्स्ट. इसमें आप वो जो टर्म्स हैं उनका आगे लिखते हो कि दिस टर्म इज यूज ऑन द पेज नंबर दिस एंड दिस टर्म इज यूज ऑन द पेज नंबर दिस. और ये जो इंडेक्स में होती हैं ये टर्म सारे अल्फाबेटिकली लिस्ट की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज ग्लोसरी. ग्लोसरी में क्या आता है कि आपकी जो है वो जो टर्म्स यूज होगी उनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी जाती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स जो रेगुलरली यूज नहीं की जाती, या कुछ ऐसी टर्म्स जिनका मतलब लोगों को नहीं पता, या कोई स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं उस रिपोर्ट के लिहाज से, तो उनकी आगे आप यहाँ पे डेफिनेशंस लिख देते हो. ठीक है, और समटाइम्स इवन आप वहाँ पे उनकी लोकेशन भी बता देते हो कि वो किस उसमें सेक्शन में ये टर्म यूज की गई. नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी में क्या आता है कि आपने जो नेट से बुक्स या कोई आपने वेबसाइट्स अगर देखी हैं या किसी के रिसर्च पेपर्स आपने देखे हैं, तो उनका यहाँ पे पूरा आप लिंक दे देते हो. ठीक है, ताकि जो रीडर है वो उस चीज के बारे में डिटेल अगर उसने पढ़नी है तो वो इन लिंक्स के थ्रू जाके डिटेल पढ़ ले. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग. होपफुली इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे. इंशाल्लाह विल मीट in the next class. Till then, take care and Allah Hafiz.